I hope my screen is visible at your end. Please tell me. Yes, sir. Yes. Okay. So in today's class, we will be studying various methods to solve linear equations. Various methods to solve linear equation in two variables. In two variables. Okay. The first method is method of substitution. Method of substitution. So see how we are going to solve by using method of substitution. Method of substitution. I'm explaining with the help of example. Suppose we are asked to solve, that is solve x plus 2y is equal to minus 1 and 2x plus 3y is equal to 12. So we have to solve these two linear equation in two variable. तो बेटा देखिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या है, हम कोशिश करेंगे इसको एक ही वेरिएबल में रिड्यूस करने की. आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड 2. इट इज़ एंटायरली योर विश कि किसी भी एक इक्वेशन से आप चाहे y के लिए सोल्व करें या x के लिए. सपोज फ्रॉम 1 I will solve for x. My value of x is minus 1 minus 2y. Is that okay? Now use it in 2. अब ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो यू विल बी हैविंग 2 टाइम्स ऑफ minus 1 minus 2y plus 3y equal to 12. Now see what happened. Now it reduces in the one variable. Please tell me. Minus 4y. Yes, sir. It will be within one variable. Now see minus y will become equals to 14. This will imply your y is how much? Minus 14. Please tell me. Clear है बेटा यहाँ तक? Yes, Yes. sir. Okay. Now once you obtain the y, so you can substitute in any of the relation. So since we were having x plus 2y is equal to minus 1, so if I use y equal to minus 14, तो क्या होगा बेटा देखिए यहाँ पे आएगा minus 28 equals to minus 1. So your x will be equal to 27. Is that okay beta? And y is turning out to be minus 14. Clear है बेटा? Please reply. Yes, sir. So if you want to Yes, sir. Clear. if you want to take the screenshot, so you can take it. Done beta? Yes, sir. Okay. See, one more problem I just want to discuss. Then we'll do the second method. Suppose the question is solve x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0. See, एक तो चीज़ आप पहले एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा. देखिए कई बार हमें क्या होता है कि हम सोल्व तो करना स्टार्ट करते हैं, क्या हम राइट इन द बिगिनिंग कैन वी कंक्लूड वेदर दिस इक्वेशन विल हैव द सॉल्यूशन और नॉट? कैन वी कंक्लूड? प्लीज टेल मी. हमने लास्ट क्लास में क्राइटेरिया बताया था आप लोगों को, यूनिक सॉल्यूशन और उसका. प्लीज टेल मी Yes, sir. क्या था? इफ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 देन यूनिक सॉल्यूशन बताया था कुछ ऐसा. Yes, sir. और हमने ऐसा बताया था Yes, sir. if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 then infinite solution. बेटा बताया था ऐसा कुछ. Yes, sir. And a1 by a2 still equal to b1 by b2
बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो वो क्या क्राइटेरिया था? नो सॉल्यूशन का. I hope you remember these criteria. Now based on this criteria, suppose if I do right, now see, if I compare the coefficients, 1 by 2 is same as 2 by 4. Can I say which is equal to minus 4 by minus 12? I think it is not the case. Okay, so clearly it is a case of no solution. अब तो कई बार हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए बिगिनिंग में. चलो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे तरीके से भी ये चीज़ आपको जज करके दिखाता हूँ. देखिए x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x प्लस 4y बेटा इक्वल टू 12 है. कैन आई, इफ आई स्टार्ट मल्टीप्लाइंग माई इक्वेशन 1 by 2, then it must be 2x plus 4y must be equal to 8, but my left hand side they have given is equal to 12. Can 12 be equals to 8? No, which is absurd. Okay. Yes, sir. Or otherwise if you want to use method of substitution, उससे भी देखिए contradiction कैसे आएगा. मैं सारे तुम्हें सारे if and buts बता रहा हूँ, because being a student जब आप solve करोगे तो सारी बातें सोचनी चाहिए नहीं चाहिए? आप बताइए जरा. You should think Yes, sir. for all of these parameters, you should think together. Okay, so suppose this is my equation 1 beta, this is my equation 2. Okay, so from 1 my x is equal to 4 minus 2y beta. Now let us substitute in 2. Now use in 2, that is 2 times of 4 minus 2y plus 4y minus 12 equals to 0. So it will be beta 8 minus 4y plus 4y minus 12 equals to 0. Now see, we are obtaining minus 4 equal to 0, which is impossible, है ना? तो आप सीधा कहेंगे system has no solution. So that is why I have taken this special example. System has no solution. Clear है बेटा? Yes, sir. Yes, sir, clear है. तो मैंने इसको आपको कई तरीके से मैंने आपको ये जज करने का तरीका बताया, तो ये दिमाग में रखिएगा ये सारी चीज़ें. तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा. नेक्स्ट आपको बताते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन. देखिए ये कैसे करते हैं, आराम से देखना. इट इज़ अ सिंपल वन, इट इज़ नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, एंड most of the time the student prefer this or either another method that I'm going to discuss. See, we have the next is method of elimination. Suppose the question is solve x plus 2y is equals to minus 1. 2x plus 3y is equal to 12. बेटा इसमें हम क्या करते हैं एलिमिनेशन में? पहले एक काम कीजिए, ऑब्जर्व करिए पहली इक्वेशन में x के कोफिशिएंट्स क्या हैं. अब बताओ जरा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन? 1, और सेकंड में 2, अगर आपने जो मैं यहाँ कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ, देखिए मैंने अलग से लिख लिए. पहले में 1 है और यहाँ 2 है. क्या इन दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल बनाए जा सकते हैं? तो देखिए हम क्या करेंगे, ये रिवर्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे. इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इधर. आर यू गेटिंग इट? यानी इस फर्स्ट इक्वेशन को आप पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से कर देंगे. इज दैट ओके? yes, sir. आप ये y के साथ भी कर सकते हो बेटा. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू डू इट विद x. मैं पहले x के साथ करके दिखा रहा हूँ, फिर y के साथ भी करके दिखाएंगे. देखिए, लेट अस डू इट. यू विल बी हैविंग 2x plus 4y is equals to minus 2, and it will be 2x plus 3y equals to 12. Now let us subtract them. अगर मैं subtract करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे. ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. So this will get cancelled. अब 4y minus 3y you will get y and it will be minus 14. Is that okay? Yes, sir. ओके, चलिए मैं एक काम करता हूँ. मैं चाहूँ तो अब y की वैल्यू डायरेक्ट यूज करके x निकाल सकता हूँ, लेकिन y की भी एलिमिनेशन से निकाल के दिखाएंगे. देखिएगा, x प्लस 2y
इज इक्वल टू -1, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब जरा यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y लिख लीजिए बेटा, इधर 2 है और इधर 3 है। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes. तो बेटा इस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ पर भी रिवर्स करिए लाइक दिस, यानी ऊपर वाली इक्वेशन को मैं पूरी को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाली इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इज दैट ओके बेटा? Yes, sir. लेट अस डू इट। 3x Yes, sir. प्लस 6y इज इक्वल टू -3, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 24। 24. Now see, let us subtract them now. Minus, minus, minus. This will get cancel. यहाँ से minus x आएगा बेटा, equals to minus Yes. 27. So this will get cancelled. So x is equal to 27. Is that okay बेटा? I hope the method Yes. is clear to you. Yes, sir. Yes. Okay. Now we'll do one more problem so that you can understand it in the better way. अभी मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ मेथड जस्टिफाई कर रहा हूँ तुम्हें कि कैसे अप्लाई करना है। डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now let us solve one more problem by using method of elimination. Method of elimination से let us solve 2x plus 3y is equals to 9, 3x plus 4y is equals to 5। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप x से एलिमिनेशन करना चाहोगे या y का, इट्स अप टू यू। सपोज इफ आई डू दिस वे, रिवर्स कर रहा हूँ, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से इसको। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है क्यों कर रहा हूँ ऐसे? हाँ, Yes, sir. तो लेट अस डू इट। Yes. तो यू विल बी हैविंग बेटा 6x प्लस 9y इक्वल टू 27, देन 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। तो बेटा ये माइनस माइनस माइनस, दिस विल गेट कैंसल, सो यू विल बी हैविंग y इज इक्वल टू 17। इज दैट ओके बेटा? अब आप चाहे तो y की वैल्यू इस्तेमाल कर लीजिए किसी एक इक्वेशन में। मैं क्या कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि दोनों में एलिमिनेशन लगाए, तो व्हाट आई कैन डू यूजिंग y इज इक्वल टू 17 इन 1, तो 2x प्लस 3 इंटू 17 इक्वल टू 9। व्हाट इज 17 इंटू 3 बेटा? प्लीज टेल मी। So 51. 51, यस। इसको इधर लेके जाएंगे तो 9 माइनस 51 इज minus 42. Yes, sir. So your x will be equal to minus 21. आप लास्ट में इसको चेक भी कर सकते हैं आपका सॉल्यूशन ठीक आया नहीं आया। इट मस्ट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। चेक कैसे करेंगे? आपने x क्या निकाला 17, तो मान लो पहले फर्स्ट इक्वेशन में डालिए 2x प्लस 3y, तो x का वैल्यू कितना है 17, तो डालेंगे तो कितना आएगा बेटा 34, और यहाँ से डालेंगे तो माइनस का कितना आएगा, सॉरी x माइनस 21, आई एम सो सॉरी, x इज माइनस 21 एंड y इज 17। तो यहाँ से अगर मैं डालता हूँ तो मेरे पास आता -42 प्लस 51 विच इज इक्वल टू 9। सो इट मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई द सेकेंड इक्वेशन एज वेल। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है 3x प्लस 4y है ना बेटा। तो अगर यहाँ x डालते तो कितना आएगा -63 प्लस ये कितना आएगा बताएंगे जरा 17 इंटू 4 68 आएगा, Yes, sir. दैट इज इक्वल टू 5। तो इट इज़ वेरीफाइड। आप ऐसे अपना सॉल्यूशन वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो भी ज़रा ध्यान से समझ लेना। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करेंगे, उससे बड़ा फास्ट आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. Suppose you are writing linear equation like this: a1x plus b1y plus c1 equals to 0. a2x plus b2y plus c2 equals to 0. What you will do? You write x, y and 1. अब x के इसमें हम देखें कैसे यहाँ डिनोमिनेटर बनाएंगे. x के कोफिशिएंट्स को हाइड कर लीजिए. क्या दिखेगा आपको? प्लीज टेल मी. b1 b2 and c1 c2. प्लीज टेल मी इट विल हैपन और नॉट. रिप्लाई करिए. ये x के कोफिशिएंट्स को आप हाइड कर लें और बाकी जो विजिबल है वो लिख लीजिए. जब y के ऊपर आएंगे तो y के कोफिशिएंट्स को आप हाइड कर लीजिए. क्या नजर आएगा? A1, A2, C1, C2. Is that okay now? Now I'm telling you what is the value of x and how we'll write it. हमारा डायग्राम ऐसे चलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, लाइक दिस. x के नीचे डिनोमिनेटर में आप लिख लेंगे b1 c2. व्हेन यू गो अप एरो तो पुट माइनस साइन b2 c1. इज दैट ओके? Yes, sir. Okay. When you come to the y, you continue this cross multiplication chart like this: c1 a2, and with up arrow put minus sign first, minus c2 a1. Is that okay? Now next comes your 1. Yes, sir. 1. Continue it like this: a1 c2. एक मिनट बेटा, एक गड़बड़ हमने यहाँ कर दी. जस्ट वेट इट. वेट. यहाँ जब 1 आएगा तो यहाँ आप लिखेंगे b1 b2 दोबारा, लाइक दिस. तो यू विल बी हैविंग a1 b2 माइनस a2 b1 लाइक दिस. तो x आपके पास आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. और y आपके पास आ जाएगा बेटा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ये आपके पास सीधी वैल्यू आएंगी निकाल के. अभी मैं क्वेश्चन से आपको सोल्व करके देखिए. डायग्राम आपको कैसे याद करना है समझ लीजिए. b1 b2 c1 c2 और a1 तो लास्ट में दोबारा ये वाली जो कॉलम है आपकी b1 वाली दोबारा रिपीट होगी. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Now I'm solving the problem so that you can understand it. Question is solve. X plus 2y is equals to minus 1 and 2x plus 3y is equals to 12. तो पहले इसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए. x plus 2y plus 1 equals to 0. फिर लिख लीजिए 2x plus 3y. राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं छोड़ना है, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है. ले आए बेटा? दिस स्टेप इज क्लियर? प्लीज टेल मी. Yes, sir. It's clear. Now you will write x, y and 1. तो कैसे लिखेंगे? क्या था हमारा डायग्राम? 2 3. इज दैट ओके? क्योंकि x वाले कोफिशिएंट को नहीं लिखना है. फिर उसके बाद 1 माइनस 12. 1 minus 12. फिर क्या आएगा? तो ये माइनस, क्या बेटा? मेरे को लगा सर आपने -1 लिखा है, नहीं, माइनस 12 लिखा. तो सर से कंफ्यूजन हो. ठीक है. फिर उसके बाद आप y को आप हाइड कर लेंगे तो क्या दिखेगा? 1 2. इज दैट ओके? और फिर लास्ट वाली कॉलम आपको दोबारा रिपीट कर देनी है 2 3 लाइक दिस. अब आप जरा x के लिए सोल्व करेंगे. x के डिनोमिनेटर में कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई इट. कितना आएगा? -24. और इधर जाएंगे तो विद माइनस साइन जाएंगे -3. इज दैट ओके? Yes, sir. y अपॉन, अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2
और जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो माइनस अप एरो की वजह से और एक ये, तो प्लस 12 आ जाएगा. इज दैट ओके? द Yes, नेक्स्ट sir. Yes. नेक्स्ट यू आर गोइंग टू राइट 1 क्रॉस मल्टीप्लाइड 3 and then with minus sign -4. Is that okay? Four. So Yes, sir. x by minus 27, y by 14 is equal to कितना आ जाएगा ये? -1. So your x is equal to 27 and y is equal to -14. Is that okay? Yes, sir. देखिए इस मेथड में क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, बाकी इतना सच इतना कुछ नहीं है. चलिए एक क्वेश्चन और करा रहे हैं इसी मेथड पे, तो आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी. देखिएगा, समझिएगा. लेट अस डिस्कस वन टिपिकल प्रॉब्लम. द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. टू एक्स अपॉन ए प्लस y upon b is equals to 2, and another one is x upon a minus y upon b is equal to 4. डोंट अफ्रेड कि ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे सोल्व करनी. तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा. अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले समझिए इसको. तो कैन आई टेक द एलसीएम? पहली इक्वेशन में अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? कैन यू टेल मी द एलसीएम? 2bx plus ay upon ab is equal to 2. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. I can write 2bx plus ay is equal to 2ab. So my first equation become 2bx plus ay minus 2ab is equal to 0. Is that okay? Yes, sir. The same thing we will do in the second equation as well. Take the LCM. It will be bx minus ay is equal to 4ab. लिख दूं directly? Yes, sir. So now we are ready with our equations. Equations are like this: bx minus ay minus 4ab is equal to 0. Is that okay, beta? Please tell me. Yes, sir. Okay. Now start writing x, y and 1. x के नीचे क्या आएगा? a and minus a. Please tell me. Yes, sir. अब okay. And the next one is minus Minus 2ab minus 4. minus 4ab. Then next one is 2b, b, and then a and minus a. Is that okay? Yes, sir. तो पहले x के डिनोमिनेटर को संभाल लीजिए बेटा. कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए जरा. माइनस 4a²b. हाँ. और जब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दो माइनस है तो माइनस ही रिटेन होगा. प्लीज टेल मी. Yes, sir. -2a²b. अब आइए y के नीचे. ये दोनों समझ में आए कैलकुलेशन भाई? प्लीज टेल मी. Yes, sir. सर बाद वाली नहीं समझ में आई सर. माइनस ए वाली सर, वो एक बार फिर से समझा. कौन सी माइनस से वाली बेटा? सर जो माइनस ए इंटू माइनस 2ab. नहीं, वैसे प्लस होना चाहिए क्योंकि दो माइनस साइन है. अब एक बात बताओ जरा. एक मिनट रुको, मैं करके दिखा रहा हूँ. आपने a इंटू -4ab किया. एक माइनस साइन तो आता ऊपर मल्टीप्लिकेशन के लिए. आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. एक माइनस ए का खुद का साइन हो गया. एक -2ab. हाउ मेनी माइनस आर देयर बेटा? सर 4. थ्री माइनस बेटा. ये तो दोनों ब्रैकेट के प्लस हो जाएंगे तो माइनस ही रिटेन हो जाएगा. ओके सर, ओके. Yes, sir. ये बचेगा ना, तो वही मैंने लिखा. प्लीज डोंट कंफ्यूज इन दैट. अब इसको इधर से यहाँ से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बोलो? -2ab². बिल्कुल ठीक है. अगले वाला अब बताओ क्या आएगा? माइनस आएगा या प्लस आएगा? सर +4ab². यस, +4ab.
सर इसमें 2b भी मल्टीप्लाई होगा तो फिर 8 आएगा, 8 आएगा, 8 8 आएगा, आएगा। हाँ 8ab²। क्लियर है? यस नेक्स्ट, सर। यस सर। नेक्स्ट 1, इसको करो, कितना आएगा? -2ab, और फिर कितना आ जाएगा? -ab। इज दैट ओके? माइनस। यस सर। तो नाउ लेट अस डू द सिंप्लीफिकेशन पार्ट। ओके, तो x अपॉन कितना आएगा? -6a²b आएगा बेटा। यस सर। y अपॉन कितना आएगा, जरा बताना मुझे? 6ab स्क्वायर। 6ab², and it is 1 upon -3ab. यस So यस now if I start solving for x, my x will be -6a²b upon -3ab. Is that okay? Minus minus will get cancelled. एक a भी चला गया, एक b भी चला गया, तो it turning out to be 2a. यस सर। Now next I will solve for my y, that is 6ab² upon -3ab. a से a कैंसिल, b से b, तो कितना आ जाएगा? -2b बेटा। प्लीज टेल मी। यस सर। तो ये आपका ये सॉल्यूशन हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक ही बात का ध्यान रखना है, नेमली क्या है वो गलती, क्या करते हैं हम? प्लस माइनस की गलती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ज़्यादा दिक्कत हो तो रफली जैसे मैंने यहाँ पे किया था, आपको दिखाया था ये वाला स्टेप, ऐसे करके देख लो बेटा। समझ में आई बात? जल्दबाजी मत करना। ओके सर। ओके। चलिए वन मोर प्रॉब्लम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे करा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट बेटा? यस सर, यस सर। ओके, यस सर। देखिए ये चैप्टर ऐसा जिसमें फोकट के मार्क्स आते हैं, ये छोड़ना नहीं होता है। नेक्स्ट अगेन क्या था? सोल्व फॉर x एंड y, फॉर x एंड y दे रखा mx माइनस ny इज इक्वल टू m² प्लस n² एंड x माइनस y इज इक्वल टू 2n। गॉट इट? तो पहले क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको। देखिए पहली इक्वेशन को लिख लेंगे mx माइनस ny माइनस टाइम्स ऑफ m² प्लस n²। क्लियर है बेटा? यस सर। x minus y minus 2n is equals to 0. So now this way we have these two equation that we have to simplify. अब लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले x लिखा, फिर y लिखा, फिर 1 लिखा। x के कोफिशिएंट x को छोड़ दीजिए, -n आएगा और -1 आएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। और -m² प्लस n² और -2n आएगा। इज दैट ओके बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब क्या आएगा इसके बाद? m m आएगा, और 1 1 आएगा, और फिर -n और -1। क्लियर है? माइनस 1। हाँ अब जरा देखिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हम x के लिए सोल्व कर रहे हैं। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? +2n²। क्लियर है? हाँ सर। अब इधर जाएंगे तो एक तो माइनस वैसे आना है, और मल्टीप्लाई, कितने माइनस इकट्ठे हो जाएंगे आप बताएं? ये तो माइनस ही रहेगा। माइनस m² प्लस n²। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट y पे आ जाइए। क्या आएगा? पहले ये वाला मल्टीप्लाई होगा तो पूरा माइनस m, स्क्वायर प्लस n²। पूरा मैंने माइनस साइन बाहर से खोल दिया है। और हाँ। इधर आएगा तो क्या आएगा? प्लस 2mn। क्लियर है? यस सर। अब आइए लास्ट Yes, वाला 1 वाला ले लीजिए बेटा। कितना आएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m प्लस n। ओके, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x
यहाँ से सिंप्लीफाई होगा तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आएगा. प्लीज टेल मी. Yes, sir. यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ, कैन यू रिकॉग्नाइज दिस टर्म? प्लीज टेल मी. So A square minus B square. Yes, so it is nothing but x upon n square minus m square, and it is minus times of m minus n whole square. Please tell me. Yes, sir. Okay. It is minus m plus n. Now let us solve for x. X will be equal to n square minus m square upon minus m plus n. Can we factorize it? n minus m and n plus m. और नीचे भी हमारे पास क्या है? n minus m. Please tell me. Yes, sir. So your x is n plus m. Got it, beta? Yes, sir. Now let us solve for y. Y will be equal to minus m minus n whole square upon, यहाँ से माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लो तो m minus n आएगा बेटा. Yes, sir. So your y will be m minus n. Is that okay? Yes, sir. I hope now it is much clear बेटा मेथड के कैसे करना है. Please tell me. Yes, sir. इसको दो पार्ट्स में स्क्रीनशॉट ले लीजिए. पहले यहाँ तक का ले लीजिए. डन. Yes, sir. अब ये भी ले लीजिए. तो दीज आर द थ्री मेथड दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू बेटा. और अब आपका होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ वो क्या है कि आपको पूरी एनसीईआरटी करनी, A to Z क्वेश्चन करने. यू आर नॉट गोइंग टू लीव एनी क्वेश्चन. अब हमारा डिस्कशन सिर्फ एनसीईआरटी पे होगा अगली क्लास में. सारा पूरी एक्सरसाइज के एक एक चाहे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं चाहे आपका ऑप्शनल है. सो यू हैव टू सोल्व ऑल ऑफ दिस. गॉट इट? Yes, sir. ये सारा समझ में आया आज की क्लास? सारा जितना पढ़ाया आपको बेटा, Yes, sir. तो इसी के बेसिस पे आपको सोल्व भी करना है और क्वेश्चन भी करने हैं. तो अभी मेरी जो आगे वाली दो क्लास चलेंगी, पहले एनसीईआरटी चलेगी, फिर उसके बाद आर.डी. शर्मा. अभी भी मैं कम से कम 3 क्लासेस और इस पे लूँगा. इज दैट ओके? Yes, sir. आ रहा क्लियर है बेटा तुम्हें सारा? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा.